Hello friends, Namaste. Today we will discuss our suggested answer accounts question number 2. I've already solved and released the question number 1 answer. Today I'm discussing question number 2. ठीक है? So question number 2, let us see क्या आया था question number 2. हम लोग देख लेते हैं क्या आया था question number 2. ठीक है? चलो. Yes. So question number 2 was a rectification of error का question. Yes. And very easy question has come. Lucky guys. देखिए 10 मार्क्स के लिए रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन आया है. लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन क्विकली. फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ XYZ. गिव नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम. तो आपको ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है. आई थिंक 10 एंट्रीज है. ईच एंट्री विल हैव 1 मार्क. करेक्ट. सो क्विकली हम लोग देख लेते हैं. परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आर अमाउंटिंग 10,000 रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक. परचेज एंट्री है तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू आर. बट व्हाट दे हैव डन, दे हैव डन आर टू सेल्स. अब हम इसको क्या करेंगे, वी वांट परचेज टू आर. करेक्ट. परचेज टू आर लिख लेते हैं. देन व्हाट वी विल डू, देखिए मैंने ये एंट्री बना ली. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू व्हाट आई हैव डन. आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द आंसर्स. तो परचेज टू आर आई वांटेड, so I will keep purchase to R. But do I want R to sales? No, इसको reverse कर दो, sales to R. So R में amount double हो जाएगा 2 times and then 10,000 and 10,000 here. Okay, so this is our entry. Next rectification entry is furniture purchase for office use amounting 25,000 has been entered in the purchase debit. Whenever an asset is purchased, it should be in the asset name and not in the purchases account. So how do I correct this? Furniture debit to purchase account. That's my entry. Very, very simple entry, because whenever an asset is purchased, it should be debited in the asset name only and it should not go to purchase account. Repairs to furniture amounting to 1,500 debited to furniture account. It is a revenue expenditure. Minor repairs should go to repairs account only and should not be added with the furniture. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? It should go to repairs and not to the furniture. So repairs account debit to furniture account. Okay. So yeah, I already said it. The entries are easy. Wages amounting to 3,000 paid to workmen for making office furniture has been charged to wages account. You what has been done here? Office का furniture बनाया है. So anything to build the asset, construct the asset, all the expenses must be added with the asset. So जो ये wages pay किया है to build the furniture should be added with the furniture only. Correct. And should not be debited with the wages. So हम लोगों का क्या हो जाएगा ये? So furniture account को डेबिट करना है and credit wages account. Okay, got it? Why? Because any wages paid should be added with the asset only, because it is a capital expenditure. Correct. Tuition fees of proprietor 25,000 debited to audit fees account. Anything for personal use or proprietor's use is drawings and should go to drawings only. So इसका एंट्री क्या हो जाएगा? It should go to drawings. तो drawings account to audit fees account. ठीक है, ये हो गए हमारे 5 एंट्रीज. अभी नेक्स्ट एंट्रीज देखो क्या थे. An amount of rupees 10,000 due to Mohan had been written off as bad debt in the previous year, unexpectedly recovered, debited to the personal account of Mohan. Whenever a bad debt is recovered, it should be, we should credit bad debt recover account and not Mohan's personal account. Okay, that's the rule. Because bad debts recover hua hai, so we should credit it. The reason and explanation I have explained in my normal rectification class. So इसलिए मैं अभी यहाँ पे बस briefly बता रही हूँ, because the reason, logic, all is explained in the class. You can refer to that video. Mohan to bad debts recovered. Okay. So, जब भी bad debts recover होता है, when bad debts treat करते हैं, we treat it as loss. When recover, treat it as profit. That's the simple rule. So इसलिए हम profit जैसे treat करेंगे. Mohan debit to bad debts recovered account हमारा entry हो जाएगा. Next, goods distributed as samples to customers not recorded anywhere. So distributed as samples means it's an advertisement. Whenever goods, involvement of goods, so credit purchases account. So हमारा entry हो जाएगा advertisement to purchase, but always at cost price and not at selling price. So it is 7,000. ठीक है, very simple. Again, next one, goods amounting 1,000 returned by G and Co entered in the sales to a book, posted from the credit to his account. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, बिकॉज उसका एंट्री उसका लेजर करेक्टली किया है. करेक्ट. सी, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, तो हमको क्या करना है? जी एंड कंपनी, सेल्स रिटर्न टू जी एंड को. करेक्ट. सो एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक मतलब उन्होंने किया जी टू सेल्स.
जी टू सेल्स नहीं करना, इसको रिवर्स करेंगे, सेल्स हो जाएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट में चाहिए, बट बिकॉज जीज अकाउंट इज बीन करेक्टली डन तो हमको क्रेडिट में क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, बहुत इजी था ये भी। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 10,000 had been returned by bank as dishonored and credited to the bank. So bill of exchange क्या हुआ है, bill of exchange for 10,000 returned by bank. When dishonor हो जाता है तो हमको क्या लिखना है, bill discount होके dishonor हो गया तो entry will be, entry क्या आ जाती है, who has to give it, ये है assessment को, correct, assessment को to bank. Actually हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, assessment को to bank एंट्री होनी चाहिए। एसेसेंट व्हेनेवर बिल डिस्काउंट होके डिसऑनर हो जाए तो एंट्री आएगी एसेसेंट को टू बैंक। बट व्हाट हैज बीन डन, हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक, बैंक तो उन्होंने करेक्ट किया है बट डेबिट किसको किया है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को किया है, ना कि एसेसेंट को। सो वी वांट एसेसेंट को ऑन द डेबिट साइड, बिल्स रिसीवेबल को हटाने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल क्रेडिट इट। ठीक है, सो एसेसेंट को टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज माय एंट्री। नेक्स्ट वन देख लो, bills receivable 2,500 passed through bills payable book, bill was given by Jack. So bills receivable का एंट्री होता है bills receivable to Jack, payable का एंट्री होता है Jack to bills payable. So हम इसको करेक्ट करने के लिए जैसे फर्स्ट एंट्री किया था to Jack, ये Jack का अमाउंट डबल हो जाए। ठीक है, तो ब्रीफली मैंने सारी एंट्रीज आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैंने नरेशन नहीं लिखा है इसमें, नरेशन आपको लिखना है। आई हैव जस्ट सेड द राइट एंट्रीज। ओके, सो अगर आप ये सारी एंट्रीज आपने करेक्ट की है एंड यू हैव रिटन द नरेशन, देन यू आर डेफिनेटली गेटिंग योर 10 मार्क्स। अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 सबसेक्शन बी, जो हमारा बीआरएस का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लेट्स डाइव डायरेक्टली इनटू द बीआरएस प्रॉब्लम। देखो बीआरएस प्रॉब्लम कैसे आया था, इधर ही हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं, फिर मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, चलो हमको क्या दिया है, बैंक पासबुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 60 to 500। बैंक पासबुक में डेबिट बैलेंस है, मतलब दिस इज व्हाट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, करेक्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज नथिंग बट दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, बैलेंस एज पर कैश बुक। सही है या नहीं, इट इज नथिंग बट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हम लोग ये पूरा प्रॉब्लम लाइक वी आर सॉल्विंग बैलेंस एज पर कैश बुक उसी तरह से करेंगे, बट बाकी का सारा क्या करना है हमको, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज नथिंग बट इज इक्विवेलेंट टू बैलेंस एज पर कैश बुक, सो सॉल्व द प्रॉब्लम इन द सिमिलर मैनर व्हाट आई हैव ऑलरेडी टॉट। ठीक है, हमारा लॉजिक हम क्विकली वो वाला लॉजिक अप्लाई करके क्विकली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो व्हाट इज अवर लॉजिक, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड प्लस हो जाएगा, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड माइनस हो जाएगा। अगर बैंक में कोई भी क्रेडिट है तो सारा प्लस, बैंक में कोई भी डेबिट है तो हम उसको करेंगे माइनस। इस सिंपल लॉजिक से वी विल सॉल्व दिस। See what has happened, check directly deposited into the bank by customer, no entry made in the cash book। बैंक में प्लस हुआ तो हमको क्या करना है, this transaction plus, correct। next, out of the check issued 85,000 50,000 only presented, check issued not presented क्या होना है, मतलब not presented कितना है 85 minus 50 तो only 35,000 क्या हो जाएगा plus, correct। next, check 10,000 received entered in the cash book but it was not sent to the bank, तो check deposited not cleared ये क्या हो जाता है minus, correct, yes। next, check what 50,000 sent to the bank for collection reported by bank as under 31st March तक 35,000 क्लियर कर लिया, ओके नो प्रॉब्लम, बट 10th अप्रैल 12th अप्रैल को ये दोनों चेक्स क्लियर हुए, मतलब these two checks are not cleared till 31st March, so check deposited but not cleared, so 15,000 हमको क्या करना पड़ेगा, only 15,000 को हमको माइनस करना पड़ेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, बैंक मेड डायरेक्ट पेमेंट ऑफ 1500 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक से क्या हुआ माइनस हुआ तो हमको क्या करना है, हमको भी करना है माइनस। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक 4000 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ओवरड्राफ्ट पे चार्ज किया है, बैंक में बैलेंस कम हुआ है तो हमको भी क्या करना है माइनस। बैंक चार्जेस वर 200 एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, 2 टाइम्स माइनस हो गया यार, अब क्या करें। सो हमको क्या करना है, 2 बार माइनस करने हमने कैश बुक में, सो 200 हम कर देंगे प्लस, और इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाय द बैंक 175 रुपीज हम कर देंगे माइनस, बिकॉज बैंक से डायरेक्ट पेमेंट हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा माइनस। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय पेमेंट 5000 से कम दिखाया है तो हमको क्या करना है, पेमेंट दिखाना पड़ेगा बाय ₹5000, करेक्ट। और एंट्री है, यस इतनी सी एंट्री है। सो हम लोग अब आई एम क्विकली गोइंग टू शो यू कि हाउ आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड दिस। सी आई हैव स्टार्टेड द ओवरड्राफ्ट,
ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इसका टोटल इतना हो जाएगा, ये टोटल इतना आ जाएगा। अब मुझे लेस क्या क्या करना है ये सारे देख लो, ये सारे ट्रांजैक्शंस मैंने लेस कर दिए हैं, इसका टोटल आके इतना आ गया। सो हमारा आंसर बन जाएगा, सॉरी ये अगला आंसर है जो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज माई आंसर, दैट इज 63,025 रुपीज। आपको आना चाहिए आंसर, दैट्स ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अगर आपका आंसर आया है तो इट इज राइट, अदरवाइज आपको आराम से, अगर आपने किया है, आई थिंक इट्स अ 10 मार्क क्वेश्चन, तो आप इजीली 10 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। ओके, सो आई विल सी यू लेटर टुमारो एंड वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 या